بٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں سندھ پولیس کا صوبے بھر کے پولیس اسٹیشنز کی تزئین و آرائش کا فیصلہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کو ڈی آئی جیز نے اضلاع کے ماڈل پولیس اسٹیشنز کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں حکومت سندھ سے تمام پولیس اسٹیشنز کی تزئین و آرائش کے لیے بجٹ مختص کرنے کی سفارش کی جائے۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے مبشر حسین سے۔ جی مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آج جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس پہ جو ہے وہ ماڈل پولیس اسٹیشن کی حوصلہ افزائی پذیرائی کے بعد سندھ پولیس کی جانب سے صوبے کے تمام پولیس اسٹیشن میں تزئین و آرائش کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کے دوران زونل ڈویژنل ڈی آئی جی، تمام پولیس افسران، ایس ایس پیز فائنانس، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سبھی دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ آئی جی سندھ کی جانب سے آئندہ مالی سال کی بجٹ میں حکومت سندھ سے تمام پولیس اسٹیشن کی تزئین و آرائش کی بجٹ مختص کرنے کی بھی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے۔ دیگر امور پر بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جو ہے وہ افسرانوں کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آنے والے سال میں باقاعدہ اس کا جو ہے وہ بجٹ منظور کروانا ہے سندھ حکومت سے، جس کے بعد کراچی میں مجموعی طور پر 108 پولیس اسٹیشن ہیں۔ تمام تر پولیس اسٹیشن کو جو ہے وہ ماڈل بنایا جائے گا، ان کی تزئین و آرائش کا کام کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا۔ دیگر بھی تکنیکی بنیاد پر جو ہے وہ ٹیمیں بھی تشکیل دی جائیں گی۔ ہر حوالے سے ریکارڈ کیپنگ اور دیگر کو بھی اعلیٰ معیار کی سطح پر جو ہے وہ برتر کیا جائے گا۔ تو آج فیصلے میں تمام تر اس پر جو ہے وہ معاملہ زیر غور ہے اور آنے والے بجٹ میں اس پر جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس میں تزئین و آرائش کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، تو یہ بتائے گا کہ کب سے شروع ہونے کا امکان ہے تزئین و آرائش کا عمل؟ جی بالکل، جیسا کہ اگر میں بات کروں تو چونکہ آئندہ مالی سال کا جب بجٹ آئے گا اس کے بعد آج انہوں نے جو ہے وہ لیٹر سال کی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے سندھ حکومت کو۔ بجٹ آتا ہے تبھی جو ہے وہ منظوری ہوگی، اور جس پہ آئی جی سندھ کی جانب سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے ان کو ارسال کیا گیا ہے، ان سے منظوری ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر جو تھانے ہیں ان کو، پولیس اسٹیشن ہیں ان کو ماڈل بنا دیا جائے گا۔ اب بجٹ کا انتظار ہے، آئندہ جو سال کا جو بجٹ ہے اس کے بعد ہی اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ جی بجٹ کا انتظار ہے، یہ بتائے گا کہ اس منصوبے کے لیے کتنے بجٹ کی سفارش متوقع ہے؟ جی ابھی یہ کہنا کہ قبل از وقت ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ پولیس کو ماڈل پولیس اسٹیشن بنانے میں جو ہے وہ منظوری دیتی ہے، یہ کہنا جو ہے وہ ابھی اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ جب بجٹ آئے گا گورنمنٹ اس پر مزید جو ہے وہ مشاورت ہوگی، پولیس کا اجلاس ہوگا، وزیر اعلیٰ بھی اس پر جو ہے وہ زیر اجلاس ہوگا ان کی سربراہی میں، اس کے بعد ہی جو ہے وہ تخمینہ لگایا جائے گا۔ اس کے بعد جب منظوری ملے گی اس کے بعد جو ہے وہ لائحہ عمل سامنے آئے گا کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کتنا جو ہے وہ بجٹ منظور کیا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنے تھانوں کو بھی ماڈلز کرے اور اس میں جدید طرز پر مبنی جو ہے وہ چیزوں کو شائع بھی کرے اور اس پر کام بھی کرے۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ بجٹ آنے کا امکان کب تک ویسے ظاہر کیا گیا ہے؟ بجٹ جو ہے وہ ہر سال آتا ہے، اس پر مشاورت بھی ہوتی ہے، اور پولیس چونکہ صوبائی ہر صوبے کے حساب سے اسی کی متعلق ہوتی ہے، تو یہ وزیر اعلیٰ صوبائی سطح پر اجلاس ہوگا۔ اس میں وزیر اعلیٰ، دیگر وزراء، آئی جی سندھ اور دیگر کمیٹی کے ممبران جو ہے وہ شریک ہوں گے، جس پر جو ہے وہ انہوں نے جو آج اجلاس کو مشاورت ہوئی ہے جس میں تمام تر افسران موجود تھے، اس پر جو ہے وہ معاملہ زیر غور ہوگا۔ بجٹ کا تعین کیا جائے گا، منظوری ملے گی، اس کے بعد جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ان کو منظوری دے گی کہ کتنا جو ہے وہ ان کو لاگت آتی ہے، جس پر جو ہے وہ تمام تر جو تھانے ہیں ان کو جدید تزئین و آرائش پر بنایا جا سکتا ہے، جدید طرز پر بنایا جائے گا۔ لیکن دیکھا یہ گیا رواں ماہ میں کہ ایک تھانہ جو ہے اس کو جو ہے وہ جدید طرز پر بنایا گیا ہے، جس کو جو شارع فیصل ہے ضلع ایسٹ کا تھانہ ہے، اسی طرز پر جو ہے وہ دیگر جو 108 تھانے ہیں ان کو جو ہے ماڈل پولیس اسٹیشن بنایا جائے گا۔ جی اچھا مبشر حسین، یہ بھی بتائے گا کہ
मॉडल पुलिस स्टेशन में शहरियों को किस किस्म की सहूलियात दी जाएंगी? जी, जैसा कि अगर जो थाना शाहरा फैसल है वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है, जहां साहिलीन जो हैं दरख्वास्त गुजार है, जब वो थाने में आते हैं तो एक यकीनी तौर पर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता। उनका एक बैठने का भी एक जगह मुकर्रर की जाती है जिसको लॉबी कहा जाता है। साथ ही जो है वो टोकन नुमा उनको चीज मिलती है, कंप्लेनर जो है उनको रसीद बना कर देता है। साथ ही कॉफी का भी एहतमाम किया जाता है जो इंतहाई मुनासिब कीमत पर जो है वो दस्तयाब होती है, ताकि शहरी जो साइलिन है वो थाने आने से घबराए नहीं, बल्कि थाने आने के बाद जो है वो मुकम्मल मुतमईन हो, इत्मीनान का इजहार करें और जो दरख्वास्त है वो जमा करवाएं और उसके बाद उनकी जो फरियाद है, जो मसला है, उसको फौरी तौर पर हल किया जाए। इसी पेश नज़र जो है वो आज इजलास भी मुनक्किद हुआ है और ताकि साइलिन की सहूलियात के लिए, शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए IG सिंध जो है वो पेश भी रहते हैं और ये इजलास किया गया है। मुमकिन तौर पर आने वाले जो साल है, जो आइंदा बजट साल का बजट है, उसके बाद जो है मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा और ये एक जो शहर है, शहर कायद है, इसमें भी यकीनी तौर पर एक अच्छा इक़दाम है कि शहरियों की जो मदद है, जो दरख्वास्त गुजार शहरी हैं, उनके लिए भी रसाई हासिल होगी और उनका मसला जो है वो फौरी तौर पर हल किया जाएगा। अच्छा मुबश्शिर हुसैन, अगर निगरानी की बात की जाएगी तो ये बताएगा कि इस मंसूबे की निगरानी के लिए क्या कोई स्पेशल टीम तश्कील दी जाएगी? जी, जैसा कि अभी सिर्फ इजलास मुनक्किद किया गया है, आने वाले रोज में मजीद जो है वो इसी तरह इजलास होंगे जिसमें मजीद जो है वो तफसीलात से आगाह किया जाएगा। इजलास से जो है वो ये बात भी खुलकर जो है वो सामने आएगी कि कितना पुलिस को जो है वो बजट दरकार है, सूबाई गवर्नमेंट कितना मंजूर करती है, कितनी जो है वो लागत अखराजात का जो खर्चा है वो एक फी थाने पर आता है। उसके बाद तमाम तर थानों का एदाद व शुमार, मुमकिन तौर पर ये भी पुलिस ज़राए का कहना है कि हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आला हैं, वो भी दौरा करेंगे मुश्तरका IG सिंध के साथ, जिसके बाद जो है वो मुमकिन तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि आगे कोई टीम तश्कील दी जाएगी जो बजट भी पास करेगी, तज़ीन व आराइश में भी मुकम्मल जो है मामला तामीरात पर जाएगा और उसके बाद जो है वो इसी तरह जो है वो इस पर तवज्जो की जाएगी। जी, इस पर तवज्जो की जाएगी। मुबश्शिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डंपर माफिया के आगे इंतजामिया बेबस नजर आती है। शहर में डंपर माफिया का राज बरकरार है। हैवी ट्रांसपोर्ट ने एक बार फिर कारोबार बंद करके एहतजाज की धमकी दे दी। लियाकत मसूद का कहना है कि अगर 12 तारीख के सियासी जमात के एहतजाज की सूरत में मसाइल बढ़ते हैं तो 16 तारीख से वो अपने कारोबार को बंद कर देंगे। अब से कुछ देर कबल काविश मेमन सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत मसूद के साथ ही मौजूद थे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 12 अप्रैल को सियासी जमातों की जानिब से शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर एहतजाज की कॉल दी गई है, जिस पर डंपर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। हमारे साथ लियाकत महसूद मौजूद है। लियाकत साहब, बताइएगा, आज आप लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी पेश किए, मुतालबा भी किया कि जो कम उम्र बच्चे हैं जो ड्राइविंग करते हैं उनमें पाबंदी भी लगाई जाए। क्या समझते हैं, गवर्नमेंट संजीदा आपसे बातचीत कर रही है? देखो, असल की बात ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट का जो कानून है, हम ट्रांसपोर्टर है, मैं जो गवर्नमेंट का कानून मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन जो फर्जी वाले सियासत करता है वो हमारे लिए ना मंजूर, पूरा ट्रांसपोर्टर के लिए। जो गवर्नमेंट का जो कानून है, कानून में फॉलो करता हूँ। ठीक है, 16 तारीख के हवाले से जो आपने कहा है, असल की बात ये, वो 16 तारीख जो मैंने बताया, जो हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए जो सियासत वाले बात कर रहा है, जो 10 तारीख पे मैं सुफराया रोड बंद कर दूंगा और 12 तारीख पे पूरा कराची भी बंद कर दूंगा। उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट का बनता है जो उसके ऊपर हाथ रखेगा, तो अगर वो भी बंद कर दूंगा ईवी गाड़ी के खिलाफ, उसके बाद हम भी ट्रांसपोर्टर है तो उसके बाद हम भी बंद कर देंगे। ठीक है। हाजी लियाकत महसूद मेरे साथ मौजूद है, कहते हैं कि 12 तारीख के बाद अगर ट्रांसपोर्टर्स के लिए मसाइल पैदा हुए तो फिर वो एहतजाज का ऐलान भी करेंगे। जी। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद हेलमेट पहनने से गुरेज़ा नजर आती है। इसकी क्या वजूहात हैं और शहर की दुकानों पर हेलमेट किन कीमतों में दस्तयाब है, आपको अपडेट करेंगे। इस पर भी अपने नाज़रीन को बताते चलें। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे दुर्र शहवार से, जो कि इस वक्त अकबर रोड की हेलमेट दुकान पर मौजूद हैं। जी बताइएगा।
बिल्कुल, सिंध हुकूमत इस वक्त हरकत में आ चुकी है। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। तो इजलास में उन्होंने ये फैसला किया कि हेलमेट के पहनने को उन्होंने लाजमी करार दिया है। इस वक्त मेरे साथ एक बाइक सवार अंकल मौजूद है, इनके पास हेलमेट मौजूद है। अब इनसे मैं जानूंगी कि वो लोग जो कि बगैर हेलमेट के बाइक पे सवारी करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो अपनी जान पे खेलते हैं और वो बड़ा अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। असल में हेलमेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, हादसा ज़रा सा भी हो सकता है और सबसे पहले सर पे चोट लगती है। तो सर पे चोट लगने से बंदा डैमेज हो जाता है और घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी हमारा बंदा जो घर पे काम पे गया है वो खैरियत से आएगा, लेकिन अगर हेलमेट ना होगा तो वो खुदा न खास्ता अपने बड़े हादसे से बच सकता है। तो एहतियात जो है वो इलाज जो है एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं वज़ीर आला सिंध ने जो ये कहा है हेलमेट के पहनने को लाजमी करार दिया, इससे हादसात में कमी वाक़ई होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल कमी होगी और वज़ीर आला का बड़ा अच्छा इक़दाम है, इस पर सबको अमल करना चाहिए। अगर वो नहीं भी कहते तो वैसे भी पहनना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये तो हर मोटरसाइकिल वाले को हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए। हर मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट लाजमी करार देना चाहिए, ये कहना है कराची की आवाम का। इस वक्त मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना। इनसे मैं जानूंगी हेलमेट क्यों नहीं पहना? ये तो मैं अभी सर्विस से देकर आया हूँ गाड़ी। सर्विस से भी जा रहे हो? लेकिन तुम्हें हेलमेट तो पहनना चाहिए ना। मैं मार्केट में ही हूँ, गाड़ी बेचता हूँ हम लोग, ये सर्विस पे देकर आ रहा था। तुम्हें पता है वज़ीर आला सिंध ने हेलमेट पहनने को सख्ती से लाजमी करार दिया है? हाँ पता है। कब खरीदोगे हेलमेट? हम हेलमेट भी बेचते हैं, हमको पता है। अच्छा, खुद हेलमेट बेचते हो, हेलमेट नहीं है? हाँ हेलमेट नहीं है। जी ठीक है, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, आप देखते हैं कि वो लोग जो हेलमेट नहीं पहनते हैं वो कब से हेलमेट खरीद के इस पे अपने ऊपर इस चीज़ को जो है वो इसको अपनी डेली रूटीन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी अच्छा दुरुस्त जवाहर, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से इससे पहले भी फैसला किया गया था, लेकिन इस फैसले पर क्या देखती हैं आप कि कितना अमल दरामद नज़र आएगा? जी लास्ट टाइम की निस्बत जो है मैं समझती हूँ कि अब जो है आवाम इस पे काफ़ी सख्ती से अमल दरामद करेगी, क्योंकि इस हेलमेट की दुकान पे तो हमें इतना रश देखने में नहीं मिल रहा, लेकिन जो मैं रास्ते में देखती हुई आई थी काफ़ी हेलमेट की दुकानों पर रश था, जो लोग खरीदार वहाँ पे मौजूद थे। क्योंकि अभी जिस तरह से ट्रैफिक के हादसात में रोज़ बरोज़ जो इजाफा देखने में आ रहा है, तो लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जो वज़ीर आला सिंध ने जो ये फैसला किया है वो लोगों की सेफ्टी के लिए किया है और उनको ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि हम देख रहे हैं कि शहरियों की जानिब से गफलत का मुशायरा किया जाता है, शहरी क्यों इतने नज़र आते हैं गाफिल, क्यों नहीं ये अमल करते हेलमेट पहनने से? जी हेलमेट ना पहनने की जो सबसे बड़ी जो वजह है वो शहरियों की गैर जिम्मेदारी है, लेकिन काफ़ी अगर आप तनासुब के हिसाब से पूछे तो काफ़ी शहरी ऐसे भी हैं जो अपना ख्याल रखते हुए, अपनी फैमिली को सामने मद्देनज़र रखते हुए वो हेलमेट को पहनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जी अच्छा, हम देख रहे हैं कि जब भी ऐसा फैसला किया जाता है तो जो दुकानदार हैं जो हेलमेट बेचते हैं उनकी जानिब से मज़ीद महंगे कर दिए जाते हैं, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह तो ये है, जैसा कि सब जानते हैं, जब किसी भी चीज़ की जो है मांग में इजाफा होता है तो उसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं। तो यही वजह है कि जो है हेलमेट के जो बेचने वाले हैं वो उसकी कीमत बढ़ाएंगे। लेकिन इसी पे अभी मेरे पीछे जो दुकान में जो बच्चा मौजूद है इससे मैं जानूंगी कि क्या इन्होंने भी हेलमेट की कीमत में इजाफा किया है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि अगर हेलमेट लोग खरीद रहे हैं, खरीदार हैं, तो हेलमेट की कीमतों में इजाफा होता है। इस पे मैं इस बच्चे से बात करूंगी कि क्या हेलमेट की कीमत में इजाफा हुआ है। इससे मैं बात करती हूँ कि नॉर्मल हेलमेट की कीमत में, बेटा ये बताओ कि जो हेलमेट की कीमत पहले थी, आपने आज जो वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में हेलमेट के पहनने को लाजमी करार दिया उन्होंने, तो आप लोगों ने कीमत बढ़ाई है या पहले जितनी कीमत आप लोग वसूल करोगे आवाम से? पहले कहते कीमत थोड़ी कम थी, तो अभी हम लोग कहते हैं बहुत रेट बढ़ गए हैं अभी। तो कहते हैं जो बोलते हैं ना कस्टमर को, तो फिर वो बोलता है भाई कम करो कम करो कम करो, ये बोलते हैं, फिर बढ़ा के बेचते हैं। तो हम भी कम कीमतें कब बढ़ाई हैं? इससे कम कीमतें कब बढ़ाई हैं? जी कीमतें कब बढ़ाई हैं हेलमेट की? ये एक कम से कम साल पहले हुई है। आज कुछ कीमत बढ़ाई है? आज कुछ नहीं है। नहीं नहीं जी आज कुछ कीमत नहीं बढ़ाई है, एक साल पहले इन्होंने कीमत बढ़ाई थी और अब जो है इनका ये कहना है कि एक साल पहले हमारी तरफ से कीमत बढ़ाई गई थी। जी अच्छा, जिस दुकान पर आप मौजूद हैं उनसे ये भी पूछ के बताएगा कि अभी हेलमेट की क्या कीमत बताई जा रही है? अच्छा, आप
मुझे ये बताओ कि अभी आप हेलमेट किस कीमत पे बेच रहे हो? कम से 1000 रुपये शुरू है और 15,000 तक है। 1000 से 15,000, क्या फर्क है इसमें? क्वालिटी का फ़र्क होता है और अच्छे हेलमेट होते हैं और वॉशेबल फॉर्म होता है। उसमें 15,000 वाले हेलमेट है उसमें ऐसा होता है वॉशेबल फॉर्म। सेफ्टी, मेरी बात सुनो, वॉशेबल तो चलो ठीक है, सेफ्टी किसमें ज्यादा है? सेफ्टी 1000 वाले में भी उतनी और 15,000 वाले में भी उतनी, फर्क आ जाता है? वो 1000 वाले जो है ऐसे ही गिरते हैं, टूट जाते हैं, तो क्वालिटी हल्की है। कम से कम हेलमेट अगर क्वालिटी वाला चाहिए ना तो कम से कम आपको 6-7 हज़ार वाले हेलमेट में ना क्वालिटी है। सेफ्टी के हिफाजत के हिसाब से बोल रही हूँ। हिसाब से हुआ बंदा गिरे तो सेफ्टी कर सकता है फिर वो। 6 से 7 हज़ार वाले जो हेलमेट है उसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा रोनुमा होता है कि बाइक सवार गिर जाता है तो वो चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी, जी, उनको वो कोई चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेंगी। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया, जबकि दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद हेलमेट पहनने से गुरेज़ा नजर आती है। इसकी वजूहात भी आपने हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा की। हमारे साथ मौजूद थे दुर शहवार। शहर में बढ़ते हादसात पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्शन सामने आया है। अच्छा दुर शहवार, ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कि हेलमेट का इस्तेमाल करने से कितने हद तक हादसात में कमी आएगी? इस्तेमाल करने से तो मैं ये समझती हूँ कि 90% हादसात के तनासुब में कमी वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं पहनते लोग तो वो बाइक पे गिरने के बाद किसी भी तरह से जो इंसान के जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है दिमाग, वो उस पर चोट लगने के असर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हेलमेट पहन लें तो उससे जो है वो हादसात में कमी वाक़ई हो सकती है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आवाम को जो है ये हेलमेट भी ज़रा दिखा दें कि अच्छा, मुझे आप ना जो आप कह रहे थे सेफ्टी का जो हेलमेट था 5,000 6,000, आप ज़रा वो दिखाइए कि वो हेलमेट अभी ये दिखा रहे हैं जिसमें कि ये कह रहे हैं 5,000 6,000 वाला वो हेलमेट है जो कि आवाम पहन के अगर वो बाइक चलाते हैं तो वो अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा रोनुमा होता है तो उसमें वो महफूज रहेंगे। और मैं वो हेलमेट भी अभी आवाम को दिखाऊंगी जो ये कह रहे थे 1000 रुपये वाले हैं और उसमें कोई हादसा रोनुमा होने की सूरत में वो हेलमेट टूट सकता है। अभी हमें वो हेलमेट दिखा रहे हैं जिसकी कीमत भी मैं इनसे जानूंगी, गो की बता तो चुके हैं बात। ये जी, कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ एक्शन होगा। ये कितने का हेलमेट है? ये 6,000 रुपये का है, हाफ फुल होता है। ये हाफ हो गया और इसमें डबल ग्लास होता है और इसका वॉशेबल फॉर्म होता है, वॉशेबल फॉर्म। 6,000 का बता रहे हो? अच्छा, 1000 रुपये वाला हेलमेट बताओ वो कौन सा है? इनके पास जो मुख्तलिफ वैरायटी के जो हेलमेट दस्तयाब है 1000 से 15,000 तक के हेलमेट बता रहे हैं, लेकिन ये वो हेलमेट अभी दिखा रहे हैं जिसमें कि बिल्कुल भी सेफ नहीं होंगे, इसमें कोई हिफाजत नहीं है। अगर आप ये कितने का है? 1000 रुपये वाला हेलमेट। 1000 वाला है। अच्छा, 15,000 वाला भी दिखाओ। जो अभी ये 15,000 वाला कह रहे थे कि 15,000 वाला भी हेलमेट हमारे पास दस्तयाब है, तो मैं इनसे वो मैं चाहूंगी वो आवाम को हमारे दिखाएं कि 15,000 वाला हेलमेट कौन सा और जिससे 6,000 में भी अगर आपकी हिफाजत हो सकती है तो 15,000 वाला हेलमेट क्यों लें इतना महंगा? गो के 15,000 वाले हेलमेट में ऐसा क्या है? अच्छा, ये कितने का है? ये 15,000 रुपये का। इसमें और 6,000 वाले में क्या फर्क? ये वो सिंपल है, 6,000 वाला ये डॉट सर्टिफाइड है। ये पूरे पाकिस्तान में चल रही है, नहीं पूरी दुनिया में चल रही है, सिर्फ कराची में पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ये वाला हेलमेट। सेफ्टी शहर में बढ़ते हादसात पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का एक्शन। अहम इजलास में फैसला कर लिया कि शहर में हैवी गाड़ियों की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद थे दुर शहवार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहर में बढ़ते हादसात पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्शन। अहम इजलास में फैसला कर लिया कि शहर में हैवी गाड़ियों की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा नहीं होगी। तमाम हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स के लाइसेंस भी चेक होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आज शहर में एक अहम इजलास हुआ है जिसमें फ़ैसला किया गया है कि शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के हादसात को मद्देनज़र रखते हुए एक जो हिकमत अमली तैयार की गई है उसमें ट्रैफिक पुलिस
को जो है वो हिदायत दी गई है कि बगैर हेलमेट के जो मोटरसाइकिल सवार हैं शहरी, उनको जो है वो पाबंद किया जाए कि बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल ना चलाएं। सड़कों पर हादसात के सबब जो है ये फैसला किया गया है। बगैर फिटनेस की हैवी व्हीकल जो शहर में चल रही हैं उन पे पाबंदी आयद की जाए। उनको जो है बगैर फिटनेस की शहर की सड़कों पे निकलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको जब्त किया जाए और इस मुहिम को जो है वो फौरी तौर पे नाफिजुल अमल किया जाए। और देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो शहर की बेशुमार शाहराहों पे जो है वो हरकत में नज़र आ रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ साथ जो बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार हैं उनको भी रोक के जो है वो तंबी की जा रही है पहले फेज़ में कि हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को वो यकीनी बनाया जा सके। मोटरसाइकिल सवार हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। हेलमेट तो उन्होंने पहना हुआ है लेकिन उनसे पूछते हैं कितना ज़रूरी है। सर मुझे बताइएगा हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है हेलमेट पहनना। हेलमेट से हमारी बहुत सेफ्टी होती है और जान माल हमारी सब हिफाजत में रहती है। बहुत ज़रूरी है, मैं तो हमेशा पहन के चलाता हूँ और मैं सबको मशवरा देता हूँ कि पहन के ही चलाना चाहिए हेलमेट। ठीक है। अच्छा, शहर में जो हैवी ट्रैफिक चल रहा है, बेहंगम टैंकर हैं, डंपर हैं, उनसे हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस पर भी अहकामात हैं कि उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो देखे जाएँ। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ज़रूरी है, उनकी फिटनेस होनी चाहिए, उनको चेकअप होना चाहिए। प्रॉपर चेक होगा तो यहाँ पे हादसा होंगे नहीं। एक बड़े पैमाने पे जो है वो ट्रैफिक पुलिस को क्रैकडाउन करना होगा, साथ साथ थाने की पुलिस को भी इस तमाम मामलात में जो है वो मामनत फराम करनी होगी ताकि इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो सड़कों पर यकीनी बनाया जा सके ताकि जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को इस तमाम तर मामले से हादसात से जो है उनको महफूज किया जा सके। जी अब आपको बताएं, रवा साल भी मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। नकल माफिया ने फिर मकरू धंधा करते हुए तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। जमाते दहम का पहला पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर लीक हो गया, जबकि शहर के बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब रही। तलबा पसीने पसीने हो गए, कहीं फर्नीचर गायब तो कहीं ज़्यादा तलबा को भेज दिया गया। तलबा ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। मैट्रिक इम्तिहानात में बद नज़्मे उरूज पर नकल माफिया को भी लगाम ना डाली जा सकी। पहले रोज 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा लिया गया। पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। पर्चा वायरल होने पर सानवी तालीमी बोर्ड कराची के नाजिम इम्तिहानात का मौक़िफ़ सामने आ गया। ज़हीरुद्दीन भुट्टो बोले, FIA के साथ मिलकर पर्चा वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। व्हाट्सएप ग्रुपों के लिए हमने FIA से रुजू किया है, पहले भी हमने उनको लेटर लिखे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी इंशाल्लाह। इम्तिहानी मराकज़ में इंतज़ामात पर तलबा को भी तहफ़्फ़ुज़ात। सिटी 21 तलबा के तासुरात सामने ले आया। पेपर आसान मगर बिजली की बंदिश ने परेशान किए रखा। पसीने से पेपर गीला हो गया, पेन की सियाही भी फैल गई, पीने का पानी ना होने के भी शिकायत। तलबा ने बुनियादी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा कर दिया। सख्ती का तो मसला नहीं था, हमें पेपर आता था, हमने कर लिया, लेकिन जो है लाइट नहीं थी, इसका ये बड़ा मसला हुआ था। इतनी गर्मी है, ऊपर से फ़ैन भी नहीं चल रहे थे, हमने गर्मी में पेपर करे आधे से ज़्यादा। बहुत हुई, इतनी गर्मी है, उसमें पसीने पसीने पेपर भी ख़राब हो रहा था। जिस तरीके का पेपर था उस हिसाब से तो ये लग रहा था कि इस बार तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से इस बार पेपर बहुत अच्छा हुआ। एक लॉन्ग जो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा हार्ड था जिस वजह से, और बाकी गर्मी इस कदर थी कि बस हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, पसीने से शराबोर, फ़ैन बिल्कुल ऑफ, लाइट्स आ नहीं रही थी। और ये कि जब हमने कहा टीचर को कि पानी मंगवा दें तो पानी वाला इतना देर में आया कि बस बिल्कुल ही बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी। सचल घोट के सेंटर में बर वक्त पेपर शुरू न होने से तलबा और वालिदैन परेशान दिखाई दिए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में इनका जो था कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम के नाम से पहले सेंटर था, वहाँ पे तो कल हम वहाँ पे गए तो वहाँ के प्रिंसिपल को पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ सेंटर पड़ा हुआ है। तो फिर हमने इनके स्कूल में कोऑर्डिनेट किया कि भाई ये क्या सिलसिला है यहाँ पे, तो इनको पता ही नहीं है बच्चे कैसे आएंगे। तो फिर स्कूल वालों ने बोर्ड ऑफिस से रब्ता किया, तो कल मगरिब के बाद इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेंटर है। तो पहले सच्चल घोट की इन्होंने कोई लोकेशन दी थी, हम रात में देखने के लिए आए यहाँ पे, तो उसके बाद लोकेशन चेंज करके उन्होंने बताया उस्मान अकेडमी है। हम खड़े हुए इधर, हमें बोल रहे कभी यहाँ लगा हुआ है कभी वहाँ लगा हुआ है, हम वहाँ जाते तो यहाँ बुला लेते हैं, यहाँ जाते तो वहाँ बुला लेते हैं। इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक के एलामिये की तरदीद कर दी। बोले कि इलेक्ट्रिक को इम्तिहानी औकात कार में लोड शेडिंग न करने का खत लिखा गया था, जिसमें के इलेक्ट्रिक ला इल्मी का इजहार कर रही है। अगर थोड़ा बहुत बिजली का बहरान है तो हम अगेन रीइटरेट करेंगे इलेक्ट्रिक को कि वो हमारे साथ तावन करे। जैसे हमारे ये जो मोहतरम बच्चे बच्चियां हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं,
वो किसी तकलीफ में न रहें। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जमशेद क्वार्टर में इम्तिहानी मरकज में फर्नीचर की कमी के बायस डेकोरेशन वाली कुर्सियां इस्तेमाल की गयी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन तमाम सहूलियात की फरहमी के लिए पुरअज़्म मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स के दौरे किए, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। शहर भर में मैट्रिक इम्तहानात में 3,80,000 तलबा के लिए 499 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए। डिवाइस या मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी, जबकि इम्तिहानी मराकिज के एतराफ दफा 144 नाफिज है। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहर में जारी गर्मी के बायस बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होने लगे। बच्चों में खसरा, डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां सामने आ रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। होलसेल मार्केट में आटे की कीमतों में ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई, जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिल रहा है। 2.5 नंबर आटे की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 66 रुपये फ़ी किलो पर आ गई, जबकि फ़ाइन आटा 86 रुपये से कम होकर 76 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। आवाम के लिए अच्छी खबर, आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा 80 रुपये से कम होकर 66 रुपये किलो पर आ गया। फाइन आटा 86 से कम होकर 76 रुपये किलो पर फरोख्त होने लगा। होलसेल ग्रोसर्स के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से ये इकदाम गंदम की कीमतों में कमी के बाइस किया गया है, जो खुश आइंद है, आवाम को रिलीफ मिलेगा। तहम उन्होंने ये भी जिक्र किया कि रिटेल मार्केट में आटा अभी तक महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। देखें, ये गंदम का रेट 14 रुपये गिरा, 14 रुपये किलो कम हुए। ऐसे ही फ्लोर मिल मालकान ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया, ना कमिश्नर की बात ना कुछ, अपने तौर पे रज़ाकाराना उन्होंने कम किया। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम फ्लोर मिल एसोसिएशन के अहदेदारों को। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, आटा सस्ता हो गया लेकिन रोटी फिर भी महंगी है। कमिश्नर कराची से दरख्वास्त है कि वो आटे और रोटी की नई सरकारी कीमतों का ऐलान करे ताकि आवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। 50 रुपये की कोई टाइम पे आटा था तो रोटी 6 रुपये 5 रुपये की हुआ करती थी, तो इसके रेट 10 रुपये मुकर्रर होने चाहिए, ना कि ये करोड़ों रोटियां इस पे बनती हैं। वो करोड़ों रोटियां, 27 करोड़ आवाम है, आप 3 करोड़ 4 करोड़ रोटियां ही लगा लें आप, अगर उस पर डबल नफ़ा है तो अरबों रुपए का ठीका है। फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे की कीमतों में कमी के इकदाम ने आवाम को कुछ राहत दी है, लेकिन अभी देखना यह है कि सरकारी सतह पर रोटी की कीमतों में कमी का कब तक मुमकिन ऐलान किया जाता है। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फार्मा समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारों ने खरीदारी की। हिस्सेस बाजार में कारोबार की सरगर्मियों का अहवाल वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मुस्बित रुझान के साथ आगाज़। स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस, सीमेंट और ऑटोमोबाइल समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी को तरजीह दी, जिसकी अक्कासी हिस्सेस बाजार की ट्रेडिंग स्क्रीन करती रही। माहिरीन ने सूरत-ए-हाल को तसल्लीबख्श करार दिया। लास्ट वर्किंग डे हमने देखा कि मार्केट ने एक वक्त में 8,000 पॉइंट की कमी की, 1,10,100 की सतह तक मार्केट गिर गई थी, लेकिन मार्केट ने जल्दी उसको रिकवर किया और अपने लॉसेस कुछ मिनिमाइज़ किए कल मार्केट ने। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है। देखिए, अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी देखी जा रही है और उसकी वजह यह है कि हमने देखना है कि मार्च के जो रिजल्ट्स हैं, मार्च क्वार्टर एंड के, वो रिजल्ट अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं और आई थिंक वो भी एक सरगर्मी है। इंटरनेशनल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा रिकवर की हैं, दुनिया भर की मार्केट्स तेज़ हैं, तो पाकिस्तान मार्केट जो है उसको फॉलो कर रही है। माहिर माशिया सलमान नकवी बोले, हुकूमत के मईशत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इक़दाम, बिलखुसूस बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई की शरह में कमी के बायस स्टॉक मार्केट में तेज़ी से रिकवरी देखी गई। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, IMF से डील हो चुकी है, करेंसी स्टेबल है, 1% के अंदर इन्फ्लेशन आ चुका है। इसके अलावा बिजली की कीमतें हाल ही में घटी हैं, ऑयल प्राइसेस इतने नीचे आ चुके हैं, उसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर असर पड़ेगा। तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और अंडर IMF अम्ब्रेला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बायस 100 इंडेक्स 1,15,532 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 453 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।